Assalamualaikum everyone, myself Hamna and welcome back to my YouTube channel. In today's video we are again going to paint a full-size painting. That means I'm not be able to show you every single detail, every single piece I was working on, so sorry for that. And in today's video we are going to paint Kiswa, which means Ghilaf-e-Kaaba, and especially the one which covers the door of Khan-e-Kaaba. So this video is going to be very interesting. Hopefully people would love it. So without any further ado, let's just begin with the video. सबसे पहले मैंने दो लैम्प ब्लैक जो पेंट हैं उनको मिक्स किया है। एक ब्लू बर्ड की तरफ से है और दूसरा मराबो का है बेसिक एक्रेल। दो लैम्प ब्लैक पेंट्स यूज़ करने का मकसद ये था क्योंकि इन दोनों की अलग विस्कोसिटी है और इन दोनों के रिज़ल्ट्स डिफरेंट हैं और ये दोनों ही पेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। So I thought of using both of them instead of just using one. जो ब्लू बर्ड का एक्रेलिक पेंट है वो उसकी शाइन बहुत प्यारी है और जो मराबो का है उसका जो मैट लुक है ना वो बहुत प्यारा लगता है। तो शाइन एंड मैट कलर, मैट टच दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं ना। आफ्टर दैट हम चॉक यूज़ करते हुए सारी जो है ना प्लॉटिंग कंप्लीट कर लेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ आनी है। तो जो मेजर प्लॉटिंग है वो हम चॉक से डन कर लेंगे। And we will use marker to fill those lines. I want to stop you people for a little and want to talk about these. These are the paint markers. And I bought that because I thought my life would be easier with them. I saw many other artists on Instagram using these and making their life much more easier because it takes time to dip paintbrush into the paint and then paint onto the canvas. So I thought my life would also be easier. But you could see me in the video, I was struggling it because you have to apply pressure onto them to make them work. After every moment you just have to apply pressure onto it for it to work, and that onto the canvas you cannot apply pressure onto some points because there is not a single support onto the back of the canvas. So for me they just did not work. I know it's just me, maybe I don't know how to use them, but they're good to use onto the diaries, onto other things, but I don't prefer them for the canvas. So yeah, it's a no for me. And after trying so hard to make them work, I just switched to my traditional pattern of working. I just took the paintbrush, paints, and just started working with them. After struggling for a little while, I just switched back to my traditional pattern. I just took my paint brushes, paint, and I used my makeup powder, which I love the most for its dramatic and the most romantic golden it gives you. And my cat wants to cuddle a little bit, so why not? I was cuddling with her and I was also painting. So day one completes here when I am done with my plotting. पहले वाले दिन मैंने सिर्फ प्लॉटिंग की थी, सारी जितनी लाइंस जो जहाँ हैं उसको वहाँ बनाया था। और डे 2 में भी मैं सम अदर प्लॉटिंग करूँगी और फिर जो बॉर्डर हैं उनके ऊपर काम करूँगी। यहाँ से हमारा डे 2 स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर मैंने और ब्रैकेट्स वगैरह जो बने हुए हैं, जो सर्कल्स बने हुए हैं उनको बनाया, और इन सर्कल्स के अंदर जो लिखा हुआ है उनके अंदर अल्लाह रब्बी लिखा हुआ है। तो वो मैंने लिखा सारे सर्कल्स के अंदर, लेकिन अल्लाह रब्बी सिर्फ साइड वाले सर्कल्स में लिखा हुआ है, बीच में भी जो है ना सर्कल्स मौजूद हैं उनके अंदर हस्बी अल्लाह लिखा हुआ है। और इन ब्रैकेट्स और सर्कल्स के बीच में कुछ डिज़ाइनिंग थी, वो डिज़ाइनिंग की है मैंने। बहुत ही ज़्यादा बारीक काम था ये वाला, क्योंकि दूर से ये दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन करीब से ये बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहा था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यही था कि कैलीग्राफी से फिल करना है इन सारे स्पेसेस को, सारे ब्रैकेट्स को। तो इनके अंदर एक एक जगह पे किस्वा के ऊपर कहाँ क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं, तो वहाँ पे से आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैंने हर वीडियो के अंदर जो है ना बताया है कि कौन से एरिया में कौन सी आयत, कौन सी सूरत, या अगर आयत और सूरत भी नहीं है तो क्या लिखा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा।
उसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल दी है। इसके अंदर इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दे पाई बिकॉज़ इट वाज़ अ बिग प्रोजेक्ट। इसके बीच बीच में डिज़ाइनिंग भी है, कैलीग्राफी भी हुई भी है, कहीं बहुत छोटी कैलीग्राफी हुई भी है, कहीं बहुत बड़ी कैलीग्राफी हुई भी है, कहीं पे डिज़ाइंस हैं, कहीं पे पेंट्स का डिफरेंट यूज़ है, कहीं पे गोल्डन एंड ब्लैक मेजॉरिटी यूज़ है इसके पूरे के अंदर। और जो है ना कहीं कहीं हमने वाइट यूज़ करना है और वो इतना प्यारा लगता है ना, इतना प्यारा लगता है वो वाइट। अभी जहाँ मैं कैलीग्राफी कर रही हूँ वहाँ पे आयतल कुर्सी लिखी हुई है, तो वो मैं कुरान से देख के लिख रही थी। और ये वाला पार्ट जो है वो सबसे मुश्किल पार्ट था, क्योंकि यहाँ पे बहुत बारीक काम करना था, बहुत छोटी छोटी आयतल कुर्सी पूरी की पूरी लिखनी थी। और एक्चुअल किस्सा जो है उसके अंदर सिर्फ आयतल कुर्सी लिखी हुई है, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही बारीक काम कर दिया था, तो इस वजह से मेरे पास स्पेस बच रहा था। तो जो आयतल कुर्सी के आगे तीसरे पारे में आयतल कुर्सी मौजूद है, तो उसके आगे जो आयत मौजूद हैं तो मैंने उनको भी ऐड ऑन कर दिया था। तो एक्चुअल किस्सा जो है उसके अंदर वो नहीं है, लेकिन मैंने ऐड ऑन कर दिया था क्योंकि वो स्पेस खाली नहीं छोड़ सकते, तो मेरे पास स्पेस बच गया था। ऊपर वाले जो ब्रैकेट थे 2 और ये जो नीचे वाले ब्रैकेट जिन पे मैं लिख रही हूँ, इनके ऊपर पूरे पे आयतल कुर्सी चल रही है और आयतल कुर्सी पूरी कंप्लीट होती है इनके ऊपर। लेकिन मैंने जो है ना आयतल कुर्सी से आगे भी लिखा है थोड़ा सा। सबसे ज़्यादा फ़न पार्ट ये सर्कस जो हैं ये थे और इनके ऊपर काम करना था, बिकॉज़ ऐसा कुछ पहले नहीं किया है कि काम चल रहा हो, पेंटिंग चल रही हो, उसके बीच में सर्कल में आपको कैलीग्राफी करनी पड़ जाए। सो इट वाज़ माई फर्स्ट टाइम एंड आई रियली एंजॉयड इट। और सेंटर में गोल्डन से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है और साइड में जो है ना वाइट से कुल हुवल्लाहु अहद जो है ना लिखी हुई है पूरी सर्कल में, ठीक है। और दूसरे वाले में जो है वो जो लिखा हुआ है वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने शॉर्ट्स के अंदर एक्सप्लेन किया है कि वो भी क्या लिखा हुआ है। एक में कुल हुवल्लाहु अहद लिखी हुई है सर्कल में और दूसरे में जो है ना दूसरी कोई सूरत लिखी हुई है। तो आई विल टेल यू इन शॉर्ट्स एंड आई विल एक्सप्लेन इन शॉर्ट्स, जिसके अंदर मैंने बताया है कि जो है ना किस्सा के ऊपर क्या क्या लिखी हुई है, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और इस सर्कल को मैंने पूरा बनाते हुए दिखाया हुआ है डिफरेंट स्टेजेस, और किस तरीके से मैं पूरा घूम के इसको जो है ना पेंट करूँगी हर एंगल से आके। और ऐसा मुझे इस वजह से करना पड़ता है क्योंकि मेरे पास ईज़ल नहीं है, और यहाँ आप देख सकते हैं मुझे अपने आप को बैक पेन देते हुए, बहुत ही सीवियर वाला, क्योंकि इस तरीके से काम करने से ना बैक में बहुत पेन होता है। तो आई डोंट ओन एन ईज़ल नाउ, बट आई होप आई विल बाय वन फॉर मी इन द फ्यूचर। तो अभी जब तक वो नहीं है तब तक हमें ऐसे काम करना पड़ेगा। और ये एंड में मेड इन मक्का वगैरह लिखा हुआ है नीचे, और सऊदीया का किंग कौन है वो लिखा हुआ है। So this is it. This was all about this video. It took a lot of time and a lot of hard work. So before going, do subscribe for more videos like this and more content like this, and do share this video with the people you love and care for. And also do comment what else do you want me to make next for you people, or otherwise I will be making my content. So this is it. Thank you so much for watching, and thank you so much for spending time onto this video. We'll see you into the next video. Bye.